सबसे पहला उन्होंने बताया कि सबके सब में एक जी और एक एंथुजियाज्म है कि वो नंबर वन बने। क्या वो सही कह रहे थे मुझे? यस। सब में एंथुजियाज्म बैठ जाएगा। सही कहा। दूसरा उन्होंने बताया कि सब में जो है सीखने का बहुत इंटरेस्ट है। कभी भी वो ये नहीं कहते कि आई नो ऑल, वो कहते कि मुझे कुछ और सीखना है, आई वांट टू बी बेटर। क्या वो सही बता रहे हैं? यस। सीखना भी चाहते हैं, मुझे अभी तक सब कुछ ठीक है। एनर्जी। आखिरी चीज उन्होंने बताई कि आप लोगों में बहुत हाई कन्विक्शन है कि आपके साथ जो भी लर्नर्स करें, पढ़े, या फिर जो भी कम्युनिटीज आपके साथ जुड़े, उनकी सक्सेस हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये भी सही बात बताया उन्होंने? यस। चलो, ये मैं इसलिए पूछा था क्योंकि जब मैंने अपना खुद का एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की, मेरी लाइफ में तीन ही चीजें जरूरी थी मेरी। सबसे पहला था कि मैं आंध्रा उड़ीसा के बॉर्डर के एक छोटे शहर से आता हूं। यहाँ पे आंध्रा तेलंगाना से कुछ लोग हैं जो तेलुगु बोल लेते हैं। మీరు తెలుగు వచ్చు? చాలా బాగా వచ్చు, కొంచెం तो मैं वहां के एक छोटे शहर में पला बना, बट ड्रीम्स बड़े, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ ड्रीम्स इज हाउ मच? Zero. To see dreams, the cost is nothing. So I thought I can see dreams because it is free of cost. To implement those dreams, it is expensive. But to see dreams, there is no cost. So 50% of the battle is won the day you are willing to do. अगर आपने सपने देखने की हिम्मत है, तो 50% चांस ऑफ सक्सेस इज है। If you can't dream, there is 100% chance of failure, because you can't be successful. So that's the first thing. So like you all have big dreams, I also have and had big dreams. Second thing, willingness to learn. I never went to college. मैं कॉलेज गया ही नहीं। आप में से कितने लोग जाते हैं? But I'm not going to college. सब जाते हैं। तो एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, मैं पहले इंग्लिश में बताऊं फिर हिंदी में बताऊं। The saying is, we never let university interfere with education. वापस कहूंगा मैं इंग्लिश में फिर हिंदी में बताऊंगा। We never let university interfere with education. हिंदी में इसका मतलब ये है कि सीखने के लिए यूनिवर्सिटी is only one of the sources. That's not the only source. There's so many other sources of life. मैंने अपनी जिंदगी की सीख ली फील्ड में, कस्टमर से मिलकर के, अपने पार्टनर से मिलकर के, नए नए लोगों से मिलकर के, अपने टीम मेंबर से। वैसे ही आप लोगों के पास बहुत और अपॉर्चुनिटीज सीखने के। ऑफ कोर्स गुरुकुल की नॉलेज इज वन ऑफ द सोर्सेज, बट वैसे और भी नॉलेज होता है। आज आप सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एवरीबॉडी इज स्पेशल इन समथिंग एल्स, आप एक दूसरे से सीख सकते हैं। That's the second big thing. But सीखने की इंटरेस्ट नहीं खत्म होती. You should never stop having an interest to learn. And third, wanting others to be successful. अगर दूसरे successful नहीं हुए, तो आपकी success short lived. It means that if your learners are successful, if your other affiliates are successful, if your partners are successful, you will also be successful. But if others are not successful, then your success will be short lived. These are the three things that I thought. These are the three things that you all do. So it seems like we are in a room full of entrepreneurs who all have same dreams, who all still want to learn, who all want to make a big difference. मुझे जब बुलाया कि आप मिलने के लिए, मैंने कहा कि आप लोग सब खुद entrepreneurs हो, you are all such successful entrepreneurs. तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, क्या सिखाऊं? So here is what I have tried to do. मैं आपको अपनी जिंदगी की 5 स्टोरीज और कहानियां बताऊं। The intent is these 5 stories hopefully is of some learning and benefit for you. That's what I will try. Is that okay? Yes. Okay. I'll start with the first story in life. The first story in life is, no matter where you come from, you can dream big. I grew up in a town which will be similar to the town that a lot of you come from. This is a place called Raigada. आपने से majority लोगों ने सुना भी नहीं होगा जगह का। That's where I grew up. But I had access to something very unique. पहली बार हमारे शहर में इंटरनेट was available.
So due to internet, मैं देख सकता था कि there are companies and founders in US जो बड़ी-बड़ी कंपनीज बना रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं ये सपना देख सकता? But ideas without implementation are just ideas. हमारे देश में probably 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और सबके मन में आइडिया है। अब उनमें और हमारे में जो लोग एक्चुअली में एग्जीक्यूट करें उनमें क्या डिफरेंस होगा? ये मैं सोचता रहता हूँ। साइड जॉब्स करता था छोटी-छोटी। मैं हमेशा कहा कि जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहेंगे, काम रोटी नहीं। तो पहले कभी सिम कार्ड बेच दिया, कभी कोई वेबसाइट बनाने का काम किया, ऑड जॉब्स, आई शुड एवरीथिंग दैट। नाउ वन डे आई वेंट टू अ डिनर मीटिंग। शाम को डिनर में 2-3 दोस्तों के साथ मिले। अब उनमें एक ने कहा कि आपने फ्लिपकार्ट देखा है? मैंने कहा देखा है। तो फ्लिपकार्ट थोड़ा चल पड़ा। मेरे मन में भी वही आइडिया था, मैंने बस टाइम पे किया है। उससे 4 महीने पहले ना ओला की शुरुआत हुई थी, दिल्ली में ओला की गाड़ियां दिखने लगी। तो दूसरे ने कहा कि आपने ओला देखा है? कहा देखा है। आप लोगों ने फ्लिपकार्ट ओला दोनों जानते होंगे आप। तो उन्होंने कहा ओला का भी मेरे दिमाग में आइडिया था, मैंने किया है। उस दिन मैंने सोचा कि मैं तीसरा उस कमरे में बैठा हुआ। मैंने कहा कि मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ओयो का आइडिया मेरे दिमाग में था और मैंने किया है, मैं कर लूंगा इसे। वो इंप्लीमेंटेशन का इंटरेस्ट मुझे लगता है कि आइडिया और एग्जीक्यूशन में डिफरेंशिएट करता है। तो मेरा पहला लर्निंग मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। आप लोग के किस किस के मन में बड़ा आइडिया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं आगे चल के? सबके मन में, मेरे भी मन में। वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट डूइंग समथिंग। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे वो 2 दोस्तों की तरह मत रहना जिन्होंने कहा कि आइडिया था पर मैंने किया है, क्योंकि वैसे तो बहुत लोग होते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी द पीपल बेसिकली गो एंड एग्जीक्यूट, जिससे कि 5-10 साल बाद हम मिले तो आप कहें कि वो आइडिया मेरे दिमाग में था, मैंने कर दिया, एंड आई हैव क्रिएटेड अ बिग। अब दूसरा, अब मन तो सबका एग्जीक्यूट करने का, but तकलीफ, it's not easy, right? If it was easy, so many people would have done it. इसमें मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दूसरा लाइफ एक्सपीरियंस है कम्युनिटीज और लोगों से मिलना कितना जरूरी है। मैंने ना 4 महीने जम के रिसर्च करी, कैसे कंप्यूटर में बैठे कि होटल इंडस्ट्री कैसा होता है, गेस्ट हाउस इंडस्ट्री कैसा होता है, कैसे कस्टमर्स रहते हैं, किस प्राइस पॉइंट कस्टमर को रहना चाहिए। आई थॉट दैट ये इंडस्ट्री में 100% सक्सेसफुल होगा। आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर में रिसर्च किया और मन में सोचा कि आई विल बी अ डोमिनेंट, लाइक आई विल बी अ बिग विनर, एंड देन व्हेन यू फर्स्ट टाइम वेंट टू अ कस्टमर यू रियलाइज दैट मतलब इट इज नॉट एज सक्सेसफुल एज यू हैव थॉट। Few people, not so many. It happened to me. First time I went to pitch to a property owner, and I said that join Oyo. This was first property. Remember, today we manage 150,000 of them. Out of 150,000, this was the first one. That first owner said, all your research is a failure. None of it makes sense. So I am not going to say yes. Right? First time I got a rejection. It's not easy. First time somebody looking at your face and saying, bad idea, I will not buy it. ये आप लोग के साथ भी हर रोज होता है. Every day you will find somebody or the other, customer, business partner, even in family, you will face rejection. The rule number 1 of implementation is being okay with rejection, but not taking no for an answer. मैंने कहा कि ठीक है सर, आप बता दीजिए what can I improve. His name was Mr. Rajesh Yadav. Mr. Rajesh Yadav used to have a small factory in Rajasthan and had a guest house in Gurgaon. So next day I again reached out to him. मैंने कहा I've spoken to your staff. Your occupancy is only 20%. If you join me, it cannot go lower than 20. It can only go. So why don't you try joining? So he said, okay, I will think. Then he forgot. 4 days later, I again showed up.
तब तक मैंने होटल के स्टाफ से दोस्ती कर ली थी। मैंने कहा था अगली बार राजेश जी आए बिकॉज ही वाज नॉट गिविंग मीटिंग डायरेक्टली। नेक्स्ट टाइम ही गेव मी मीटिंग अगेन शोड। दिस टाइम ही सेड बॉस प्लीज डू दिस पार्टनरशिप। आपको देख के लगता नहीं एनीथिंग विल बी सक्सेसफुल, बट आई विल स्टिल ट्रस्ट हिम। He was our business partner number 1. For all of you, you have to find your that Rajesh Yadav, who's your first partner. You will find it amazing. एक बार आपका पहला पार्टनर अगर आपके तो बहुत सारे clients already हैं. That is the starting point of a long-term success. I am 100% convinced about, because they teach you the most. You learn the most from your own customers. That's what I have tried to do in my own life experience. So my comment to this is, when rejections come, जब rejection आती है, take it with very with your chin up, don't get bothered. आप सोचिए तब आज टाइम में भी rejection होता है। I pitch an entrepreneur कि आप प्लीज मेरे से पैसे ले लीजिए। कई बार मोस्टली entrepreneurs हमसे पैसे ले लेते हैं, but कई बार वो कहते हैं नहीं हमें जो है नविता से कैपिटल चाहिए। नविता हमारी दोस्त है तो इट्स ओके अगर उनके पास है। It's okay. You take it on your chin and you move on. So that's the second big learning I wanted to share. Key stuff. Important and a learning that is, I hope, will make a positive difference for all of you. Future में opportunities of wealth creation कहाँ है? आज आप जो कमाई कर रहे हैं, इससे अगर आपको 3 गुना 5 गुना आगे कमाई बढ़ानी है, तो कहाँ पर opportunity रहेगी? मेरे हिसाब से 2 सेगमेंट्स हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी सबसे पहला सवाल है कि आप लोग का आज के दिन उबर को ज्यादा बिजनेस वेबसाइट से आती है या ऐप से आती है? क्या आंसर? ऐप से आती है। सिंपल आंसर। आज के दिन में ओयो को ज्यादा बिजनेस ऐप से आती है या वेबसाइट से आती है? आज के दिन में मान लीजिए फ्लिपकार्ट को ज्यादा बिजनेस वेब से आती है ऐप से आती है? ऐप से। आपको जान के सुन के ताज्जुब होगा कि 10 साल पहले, ये 10 या 15 साल पहले ये ऐप नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आज उबर का रेवेन्यू या बुकिंग्स लगभग जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग में $100 बिलियन, हर $1 बिलियन 8,000 करोड़ से ज्यादा होता है। ओयो का बुकिंग्स $1.5 बिलियन, यानी कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा। इतने सारे अमाउंट की जो बुकिंग या बिजनेस ट्रांसलेट हो रही है, ये सारी ऐसी सिस्टम के थ्रू जा रही है जो सिस्टम 15 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, दुनिया में नहीं। आप समझ रहे? वैसे ही पिछले साल इनॉग्रेट हुआ जेन एआई का, जो आप लोग जो आजकल कहा जाता है चैट जीपीटी की तरह। आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना? सब, अरे नहीं तो पहला कॉन्फ्रेंस जहाँ पे सबने चैट जीपीटी के बारे में सुना। तो मेरा मानना है अगले 5 से 10 साल में जो एप्स ने किया पिछले 10 साल, वो चैट जीपीटी और उसके तरीके के दूसरे जेन एआई सॉफ्टवेयर करेंगे। तो जितने तेजी से आप लोग इस सिस्टम्स के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में सीख ले खुद से, उतना बेहतर हो। अब इसको सीखने के 2 तरीके। एक तरीका है खुद से बेहतर करना, आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल, और दूसरा है जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट है, उस नॉलेज का लर्निंग भी ले और अपने कॉलीग्स के साथ भी लेकर के जाए। मैं हर हफ्ते 1 से 1.5 घंटा अपना समय चैट जीपीटी और एआई के बारे में, नई चीजें सीखने के बारे में काम करता हूं कि हम लोग कैसे आज का जो स्टैंडर्ड एआई है उस पे लोग कहते हैं कि अगला जनरेशन आएगा एजी आएगा। आप लोग कभी रिसर्च करिएगा, आज मैं भी कुछ आपको नया चीज कह के जाऊं। एजीआई ऐसा समय होगा जब मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस से इक्वल या उससे आगे बढ़ जाएगी हर सिचुएशन। उस समय में जो मशीन को मैनेज करना जानेगा, उनकी एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू विल बी द हाईएस्ट। मेरा हर रोजमर्रा ईमेल भेजना, मैसेज करना, कॉल्स पे डिसाइड करना, बड़े-बड़े प्रोबेबिलिटी प्रेशर देना, उन सारे में मैं डेली अपने रोजमर्रा की जिंदगी में मुझे लगता है 30% ज्यादा प्रोडक्टिव चैट जीपीटी के कारण।
मेरे लिए चैट जीपीटी मेरा ईमेल लिख देता है, मेरे लिए चैट जीपीटी व्हाट्सएप लिख देता है, कई बार मेरे को किसी को रिस्पॉन्ड करना होता है वो भी मशीन कर देते हैं। ये हर कंपनी की सच्चाई बनने वाली है। आज हमारी कंपनी एक्सपेरिमेंट कर रही है कॉल सेंटर सोल्यूशन से, जहां से आपको लगेगा आप इंसान से बात कर, पर दूसरी तरफ इंसान नहीं, मशीन अपने आप बात समझ रहा है और हिंदी में बात कर रहा है कस्टमर से। ये सारी चीजें अगर आप बनाना सीख जाए तो इमेजिन कितना वैल्यू क्रिएट करता है। ये आज के दिन की एआई के लर्निंग की अपॉर्चुनिटी पहला है। दूसरा, पहले आप लोग को याद होगा मोबाइल फोन, आप में से कितने लोग 90s बॉर्न हैं? ऑलमोस्ट 35% लोग 90s बॉर्न, 2000s के भी हैं क्या? यस। आई होप नॉट। 2000s के भी हैं? आप खड़े होंगे? अब 2000 के बाद कौन है? Amazing, amazing, congratulations. आप लोग पूरी मतलब सब there are very few times in the room I feel old. This is one of those few times. Amazing, congratulations, very proud to see. उस समय 90s के जो बच्चे हमें याद होगा कि when we had to buy mobile phone, where did we buy the mobile phone from? Shop. All of us bought mobile phones from shop. First time we bought a mobile phone. Today we don't buy it from shop anymore. We buy it online. So online will become the big source of revenue creation and wealth creation अगले 10-15-20 साल। आज अगर आप शार्क टैंक देखते हैं, आप कितनी कंपनीज देखते हैं जो सिर्फ Amazon, Blinkit, Flipkart उन्हीं में बिजनेस कर करके hundreds of crores के रेवेन्यूज की बिजनेस बना रहे हैं। देखते हो आप? यस। इंश्योरिंग कि आप ये सारे प्लेटफॉर्म सीख जाए वर्सेस नहीं सीख, वो डिफरेंस है कंपनीज लॉन्ग टर्म सक्सेस को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ ओयो में यहाँ पे नोएडा की एक पार्टनर है, उनका नाम है दीपक सिंह राणा। दीपक जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर जॉब। उनकी कंपनी ने उन्हें हमारे होटल में ठहराया। उन्होंने देखा कि ये काम अच्छा है, मैं अपने होटल बना लूं, क्योंकि ऑनलाइन से बिजनेस तो आ ही जाएगा, मुझे सिर्फ होटल मैनेज करना। अभी वो 25 होटल मैनेज करते हैं अकेले, साल का 10 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। और सिर्फ ये एक नहीं, इस साल आप लोगों ने शार्क टैंक, कितने लोग शार्क टैंक देखते हैं? सब देखते। और आप में से कितने लोगों ने रोडवेज का पिच देखा था? रोडवेज बिहार का जो टैक्सी कंपनी, 15-20% लोगों ने। सहरसा बिहार की कंपनी, लड़का चपरासी होता था, उनके फादर साहब बिहार रोडवेज में ड्राइवर होते थे। वहां पे रोडवेज को रोडवेज कहने के तरीके में लोग कह देते हैं, तो उसीलिए हमारे दोस्त ने कंपनी का नाम ही रोडवेज कर दिया। वो चपरासी थे, आईटी कंपनी। उन्होंने देखा बाकी लोग सॉफ्टवेयर लिखते हैं, उन्होंने कैसे सीखते हैं, उन्होंने उनके मदद से सीख के सॉफ्टवेयर कैसे बनाया। आज $multi-million कंपनी बना रहा है। सहरसा बिहार, आज भी सहरसा में रहते हैं, सहरसा। दिस इज द पावर ऑफ स्किल। सेकेंड, एक और कंपनी में आपको बताता हूं, कल ही इनफैक्ट एयर हुआ है, फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स, कल की कंपनी है। ये झारखंड के एक छोटे गांव से आता है। मैडम लगभग जो फाउंडर है 55 years old है, शी इज 55 years old, राइट, फ्रॉम झारखंड स्मॉल विलेज। फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी केम टू मुंबई वाज टू लाइक नॉट फर्स्ट टाइम शी लेफ्ट हर टाउन वाज टू कम visit Shark Tank. She has built a business where she sources new masala varieties, unique masala varieties, and sells it online. That's actually what. Now the lady she does roughly 1 crore of business, sitting out of a small town. And of course, I was speaking to her team today. कि आज उनका traffic already is grown up substantially, but a lot more people are trying to. Because she's learned how to use Amazon and Facebook to get business. Because she says the masalas I have, nobody else has it on Amazon. I am the only masala person. This specific masala is on Amazon. So imagine if you, all your learners,
can learn how to make specific business opportunities on Amazon, Shopify, Etsy, and many other opportunities that exist, the amount of value they can all create can be disproportionate. और last but not the least, जो मैं आपको कहना चाहूँगा, I have been doing this now for 10 years, roughly. I have 3 last learnings that I want to share with all of you. Learning number 1, अच्छे लोगों के साथ काम करना matters a lot. So don't just focus on how do you make more money. Also focus on surrounding yourself with good people. So when I see this community, आप लोग सबको मैं साथ देखता हूँ, आप you're sharing energy with each other. अगर किसी भी कमरे में आपको लगे कि मैं एकदम सबसे बेस्ट हूँ और मेरे से मुझे कुछ सीखने के लिए नहीं है दूसरे लोगों से, तो प्रॉब्लम है. आपके पास हमेशा दूसरों से सीखने के लिए कुछ होता भी है और ऐसे एनर्जी वाले लोगों के साथ आसपास भी रहेंगे, आपका भी होता है. तो सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. मेरी पर्सनली जिंदगी में बहुत बदलाव आया उससे. सेकंड, मैंने 99% times I have seen people fail because they give up early. It is very easy to give up, very hard to keep going. Many industries had problems. During COVID, I was in travel industry. Many problems. Everybody said that travel will stop during COVID, after COVID. Look at it now. People are traveling left, right, and center. Flights are full, trains are full. मतलब जगह नहीं है लोगों को ट्रैवल करने. अगर आपको अपने आप पे भरोसा है कि आप जो कर रहे हैं उससे वैल्यू क्रिएट हो रहा है, लोगों के लिए आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, यू शुड कीप गोइंग. फेलियर्स आएंगी थोड़े समय के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगे रहिए. और लास्ट और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग सब पैसे कमा रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, नई चीजें सीख रहे हैं. सीखना और पैसे कमाना दोनों जरूरी है, पर उसके साथ साथ अपने आप के लिए बेहतर मतलब एंजॉयिंग द एक्सपीरियंस एज इम्पोर्टेंट. तो आप इंश्योर करिए कि आप अच्छा काम करें और उसके साथ जो भी चीज में आपको मजा आता है. आप अगर आपको मजा आता है पार्टी करने में, आपको कुछ लोगों को मजा आता है मंदिर जाने में, आपको जिस चीज में दिलचस्पी हो, जो आपको दिल से खुशी दे, जब आप कमाएं, नई चीजें सीखें, उसे भूलिए. With that, I have only one wish for all of you. Make all of you become very successful. आप बहुत लोगों को नौकरियां दें, आप बहुत मतलब वैल्यू क्रिएट करें. आप लोग सब मिलियनेयर्स बने, हो सकता है कुछ लोग मिलियनेयर भी बने, जिससे भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करें. That's with that, I wish you all.